Um, Hi everyone. So welcome to Winnings 3 and welcome to this Mom and Me episode of Mother's Day that we thought we'll plan. And there are a few things that I wanted to discuss. So I spoke to Tanushri and I said, why not have a session for the mothers specifically? So I just thought, let's just go with the flow. So I just want to know if there are viewers already there. So yes, I am Karishma Mehra. I'm a psychologist and I work with women and children. I specifically counsel women and children for family therapy. Currently, I work with a couple of schools and a few hospitals of Delhi. Right now, I am here to talk about Women's Day, Mother's Day, and specifically about moms. So, yes, Tanushri, hi. So I can see you, and sorry for the whole. I'm not sure if I'm doing the right thing because I'm tech slow. But to start the session, so Mother's Day. Why do we need a Mother's Day? Aren't all days Mother's Days? Or aren't we all moms and we feel special all days? Sadly, no. That's not true. Sadly, we are all so engrossed in our daily life, so busy with our daily life, that there is no time absolutely to enjoy the moment of being a mom. I mean, if I have to think, then I have to think of either 6 years back or further 12 years down the line how I felt like a mom. Or the fact when I see pregnant women around me and I'm like, wow, that feeling is so long lost gone because this is how we were. So, yes, women have to be reminded of being moms and specifically the fact that we are special, and that is why I do believe in these small emotions that show us like moms, and these small reminders which show us that we are moms and we are special, and there will be people around us who are going to always take us specially, whether it's me, myself, my children, my family, or anybody else. So precisely my point, and I have decided that we want a few things that we want to get straight about this Mother's Day. The first thing being that what is it? A mom being a mom, or just my children reminding me, of course, how can we forget you are my mother? Or how can I forget I have a horrible mother? There are so many times when we talk to our children in the most negative way and we say, okay, fine, तुम ये क्यों नहीं सोचते कि तुम्हारी मम्मी नहीं है? Ask those kids who don't have moms or who have lost their moms. And to be a mom or to not have a mom, there is no age bar. We might feel pity and empathy for children who are younger but don't have moms. What about the older ones who lose their parents? I mean, I'm sure we all know what's the pain of losing a parent. And specifically, one moment. Yeah. So moms are special, and for our moms, we really want to create this special platform, and hence Mom and Me is a program that we thought of for Mother's Day. The first thing that I want to talk about is, so if all of you all are watching me, just wave so I'm aware that you all are there. If you have any questions, if you have any doubts that you want to discuss or have discussions about, please be my guest to write and I will answer all those questions for you. So first thing that I want to start about is love and control. So what is love and what is control? Why do we talk about love and control as if they are like two sides? Why? Because when I talk about control, I talk about being in charge. I talk about how I am always going to control my children. I have to control their habits. I have to control their ideas. I am controlled by my in-laws. I am controlled by my spouse. So many of us have these inner stories that we keep repeating. That control is a very important factor that moms are all about. I'm sorry, if it's going to be control, I'm sorry, extremely sorry, but control is always going to lose. At some point or the other, control is going to lose. And hi Peenal, thank you for joining me. So yes, control is going to make me lose. It's very important that I make sure that I am not controlling, but I am giving unconditional love.
I want to control, I want to demand things out of my children. My children want to demand things out of me. People all my life I feel want to demand things out of me. Don't we all agree that sometimes it was my parents, then it was my spouse, now it's my children, then it will be grandchildren. And everybody feels that yes, we are expected to confine to whatever people are demanding of us. So we feel under control. And then we have these little bundles of joy whom we bring into this world, and we feel that they belong to me. They are my soldiers. They have to listen to me. I am their head and I am their boss. Stop. You don't own them. We don't own our children. The fact that we are grateful for the fact that we got a choice to be moms. We are grateful for this. And hence, we need to remind ourselves that they are not controlled by us. We are not their controllers or their jailers, or we are not their heads and bosses. But they are human souls. They've come through you, but they are not yours. So you have to come and connect with them. Your love has to work, not your control. Today I control them for 10 years. Later they control me for the rest of my life. So the choice is yours and mine. And hence I say that we must make sure that we are making the right choices with our children. Being moms is a very, very privileged virtue that we share amongst all of us. So अगर हम इतने ज़्यादा important और इतने ही privileged अपने आप को महसूस करते हैं, तो क्या हम उसे गलत तो नहीं इस्तेमाल कर रहे? It is very important कि हम इस चीज़ को सही यूज़ करें and हम इस चीज़ का गलत फ़ायदा ना उठाएं. एंड दैट इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस चीज़ को सोचें कि हम अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं करना, हमें अपने बच्चों को जज नहीं करना, उन पर ओपिनियंस नहीं डालने, हमें अपने बच्चों के साथ प्यार बनाना है, अनकंडीशनल लव. एंड ये अनकंडीशनल लव हमें आगे लेके जाएगा. बहुत सारे पेरेंट्स का मेरे को मैसेजेस आते हैं, मैं बहुत थक गई हूँ, ये लॉकडाउन चल रहा है, परेशान हो गई हूँ, सारा दिन ऐसे लगता है डॉग्स की तरह मैं बाग कर रही हूँ अपने बच्चों पे, ये करो वो करो. एक सेकंड का पॉज लेके अपने बच्चे का तो सोचें. आप तो फिर अपने घर बैठे, हाँ आपका काम बढ़ गया है, आई अग्री, बट काम के आगे और क्या हुआ? व्हाट एल्स? व्हाट अबाउट देम? उनके बारे में हम सोचते हैं? उनका स्कूल, उनका कॉलेज, उनका ऑफिस, उनका काम, उनके सारे दोस्तों से मिलना, सब कुछ इस टाइम पे बंद है. सिस्टम को कर दिया है बंद और उन्हें डाल दिया है आपके पिंजरे में. और आप क्या करते हैं? कंट्रोल. मेरा घर है, मैं बताऊंगी कैसे करना है, मैं डिसाइड करूंगी खाना क्या बनेगा, आपको ये करना पड़ेगा, आपको अभी पढ़ना पड़ेगा. हम पुलिसमैन हैं, जेलर्स हैं या मदर्स हैं? नो, लेट्स नॉट चेंज द पैरामीटर्स ऑफ मदरहुड. लेट्स नॉट चेंज द आइडिया ऑफ मदरहुड. मॉम्स आर स्पेशल बिकॉज दे आर अनकंडीशनल. जो है, जैसा है, मेरा है. ये चीज़ हम अपने बच्चों को हर रोज़ बोलना चाहिए. मैं जब सुबह उठती हूँ, मैं अपने आप को यही चीज़ बोलती हूँ, ये मेरी दुनिया है, जो है, जैसी है, बहुत अच्छी और बहुत सुंदर है. और यहाँ पे मूड्स अप एंड डाउन हो सकते हैं, वॉल्यूम्स अप एंड डाउन हो सकती हैं, बट प्यार अप एंड डाउन नहीं हो सकता. और कंट्रोल का मतलब है प्यार अप एंड डाउन होना. कंट्रोल का मतलब है मेरे बच्चे को लगे कि अगर उसकी मम्मा ने उसको कुछ कहा है और उसने उसकी बात नहीं सुनी है, तो मम्मा का प्यार कम हो गया. आधे से ज़्यादा बच्चे तो इन्हीं प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं. आंटी मुझे तो करना पड़ेगा वरना मेरी मम्मा को बुरा लग जाएगा. आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू स्कोर वेल, आई हैव टू डू दिस पर्टिकुलर करियर बिकॉज माई पेरेंट्स विल गेट एंग्री एंड नॉट टॉक टू मी. स्टॉप. वी आर मदर्स, वी आर इन लव विथ देम, वी वॉन्ट टू शो देम अबंडेंस ऑफ लव. क्योंकि हम अपने बच्चों को इतना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. आज अगर बच्चे कुछ गलतियां करते हैं, जैसे बॉयज़ लॉकर रूम है या कोई व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं या कोई अश्लील एसएमएसेस है, तो वो भी कंट्रोल करना चाहते हैं. वो बड़े हो रहे हैं और उन्हें भी खिज मचती है क्योंकि उनके ऊपर हम बैठ गए हैं और उनके ऊपर बैठ के हम बोलते हैं हम तुम्हें बताएंगे क्या करना है. सॉरी, जब वो बाहर जाते हैं तब वो दुनिया को कहते हैं मैं जैसे कहूँगा वैसे ही करना पड़ेगा. एंड वहीं पर ये गलतियाँ होती हैं. ये गलती किसी एक जने की नहीं है, ये गलती हम सब की है. इसीलिए हम मदर्स के पास ये स्पेशल प्रिविलेज है कि जब हम अपना प्यार किसी से शेयर करते हैं तो वो अनकंडीशनल है, उसमें हम शर्तें नहीं रखते और रखनी भी नहीं चाहिए. प्यार अपनी जगह है, डिसिप्लिन अपनी जगह है. हाँ, बहुत लोग कहते हैं तो फिर डिसिप्लिन कैसे करें और बच्चों के साथ बात कैसे करें, क्योंकि अगर डिसिप्लिन नहीं करेंगे तो फिर वो तो कोई बात सुनेंगे ही नहीं. ये भी करेक्ट है कि डिसिप्लिन नहीं करेंगे तो सुनेंगे ही नहीं.
डिसिप्लिन करने की बारी कब आती है? जब हम कंट्रोल पर पहुंचते हैं, जब सामने वाले के साथ हम बात करने के लेवल पे नहीं हैं। अगर हम एक लेवल पे नहीं हैं तो वहाँ ऊपर नीचे होता है। जब ऊपर नीचे होता है तब कंट्रोल की प्रॉब्लम आती है, और जब कंट्रोल की प्रॉब्लम आती है वहीं पे ये इश्यूज़ की प्रॉब्लम आती है, ये फ्रस्ट्रेशन की प्रॉब्लम आती है, अग्रेशन, गुस्सा, स्ट्रेस, इरिटेशन, एक दूसरे पे चीखना चिल्लाना, ये प्रॉब्लम्स आती हैं। हमें इन प्रॉब्लम्स के साथ डील करना है, बट सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि वी हैव दैट वन वेपन दैट इवन फादर्स डोंट हैव, एंड दैट इज़ अनकंडीशनल लव। कि जो भी है एट द एंड ऑफ द डे माँ माँ होती है, मम्मा मम्मा होती है, और मम्मा जैसा कोई नहीं हो सकता, कोई हो ही नहीं सकता। तो फिर इसीलिए हमें अपना ये लव ऐसे यूज़ करना है कि हमारे बच्चे हमारी बात सुने। इसका मतलब ये नहीं कि आप प्यार प्यार से, बहुत बारी बच्चे आके मुझे कहते हैं कि मैम मम्मा ना प्यार प्यार में मुझे बहुत कुछ बोल देती है करने के लिए, मुझे नहीं चाहिए उनका प्यार व्यार, मुझे नहीं चाहिए। हमें उनकी बातें समझनी है, हमें ये समझना है कि वो हमें कह क्या रहे हैं, क्या उनकी बातों में हमें समझ आ रहा है कि वो हमें क्या समझाना चाहते हैं। शायद हमारा बच्चा उस फेज़ में है जहाँ वो बड़ा हो रहा है, जहाँ वो दीन दुनिया देख रहा है, एंड ही विल नॉट लिसन टू यू एंड मी। जब हम कंट्रोल कर रहे हैं वो नहीं सुनेगा आपके कंट्रोल को। तो आपको ये चीज़ का ध्यान हर समय रखना है एज अ मॉम, दैट वी आर अनकंडीशनल लव, वी आर द एपिटोम, हमारे जैसा कोई नहीं, और हमें अपने इन वेपन्स का यूज़ अच्छे से करना है। थैंक यू कृति। एंड यस, हम यही कह रहे थे कि लव वर्सेस कंट्रोल में जीत हमेशा माँ के प्यार की होती है, ना कि माँ के कंट्रोल की। जब हम किसी को कंट्रोल करना चाहते हैं, आप ये याद रखिएगा, यू विल ऑलवेज लूज। यू कैन कंट्रोल फिजिकली अ पर्सन, यू कान कंट्रोल अ पर्सन फ्रॉम हिज माइंड। आपको अपने बच्चे पे कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है, उसके साथ एक ब्रिज बनाने की ज़रूरत है। एक स्थायी रूप से हमें उसके साथ एक प्लेटफॉर्म बनाना है जहां हम मैन टू मैन, आई टू आई बात करें। मैं अपने बच्चों को ये चीज़ बहुत बार कहती हूँ, वाई नॉट टॉक आई टू आई। हम दोनों आपस में ऐसे बात करें कि जैसे आप अगर कुछ मुझे बोलो तो मुझे उस चीज़ का बुरा नहीं लगना चाहिए, और मैं भी आपका व्यू पॉइंट सुनूंगी। जब हम इस बात को अपने बच्चों को कहते हैं, जब हम अपने बच्चे से ये कहते हैं कि आपको जो भी कहना है आप मुझे सही सही बताओ, क्या आपका बच्चा आपको कहता है? कितनी बारी ऐसे होता है कि बच्चे स्कूल से आते हैं, माँ की बहुत आदत होती है आज स्कूल में क्या किया, और बच्चों की बहुत आदत होती है आगे से जवाब देना, कुछ नहीं, याद नहीं। ऐसा नहीं है उन्हें याद नहीं है, उन्हें ये याद है कि माँ को नहीं पता। क्यों? शायद यहीं हमें अपनी चेकिंग करनी है। या तो हो सकता है दे थिंक, बहुत बार बच्चे मुझे ये चीज़ कहते हैं, आंटी 2 रीज़न है, एक या तो उनको समझ नहीं आएगा, उनके ऊपर से बात निकल जाएगी, दूसरा उनको मेरे पे विश्वास ही नहीं होगा, वो मुझे ही डांटने लग जाएंगी, इसलिए बेटर है कि उनको इन्वॉल्व ही ना करो, मैं आपसे बात करूँ। दैट्स नॉट द पॉइंट। माँ माँ होती है, और माँ का प्यार होता है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, आई वांटेड टू ऑल्सो टॉक अबाउट द केओस। हमारे माइंड, हमारे दिमाग, हमारे मन में जो इतनी अफलातूनी बातें जो हर समय गूंजती हैं, इतनी सारी थॉट्स आती हैं कि कभी कभी लगता है बस रात को सोते हुए भी याद आएगा, कल सुबह इसके लिए ये सब्जी, इसका होमवर्क, इसके लिए मैम को फ़ोन करना है, हस्बैंड के लिए ये करना है। हम 24 घंटे हमारे दिमाग में सिर्फ ये चल रहा है किसके लिए क्या करना है, और उसके साथ साथ अपना काम। सो मेनी थिंग्स टू डू। सो आंट यू अ सुपर वुमन? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू मेक ईच वन ऑफ यू पैट योर बैक फॉर बीइंग अ सुपर वुमन। कोई कुछ भी कहे, ये बात मुझे अपने बारे में याद रखनी है कि मैं एक सुपर वुमन हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर इस समय मेरी पूरी फैमिली है, मेरा काम है, मेरे बच्चों की पढ़ाई है, और कहीं ना कहीं किचन का भी रोल है। बहुत चीज़ें हैं हैंडल करने के लिए, और हम अपने आसपास मुश्किल चीज़ें भी देख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए समय भी बहुत मुश्किल है, और उस चीज़ के लिए हमें उनको सलाम करना चाहिए, द फैक्ट दैट अ मदर इज स्टिल एबल टू वर्क स्माइलिंगली। खाना फिर भी हम समय पे देते हैं बच्चों को, खाना क्या, हम प्यार भी उतना ही करते हैं सबसे। इसलिए वी हैव टू पैट आवर बैक एंड से वेरी गुड टू आवरसेल्व्स। दिस डे वी हैव चोजन द ईव ऑफ मदर्स डे। कल है मदर्स डे, संडे है, सबकी छुट्टी है, पर आपकी नहीं होगी शायद, क्योंकि आपको
क्योंकि सबकी संडे की छुट्टी है और दिमाग में संडे है, सब हमारे ऊपर नाच रहे होंगे। यही हम आपस में बात करते हैं ना, सारे बच्चे सिर पे नाच रहे हैं। आप बच्चों की तो सोचो, आप अपनी तो सोचो। आप जब ये बोलते हैं तो वो वाकई नाचते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका माइंड हर बारी सबके बारे में सोच रहा है, आपके बारे में कब सोचेगा? When will you think about yourself? पूरी ज़िंदगी सबके लिए सब कुछ करने में निकल गई एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। देयर इज़ नो रिग्रेट। मैं किसी को ये नहीं कह रही कि आपको रिग्रेट करना चाहिए क्योंकि आपने अपने बारे में नहीं सोचा या आप सोचते हैं और अच्छा नहीं है। आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है। साल में एक दिन आता है अपने बारे में थोड़ा सा मोमेंटरीली अच्छा फील करने का। वाई नॉट? वाई वुडेंट आई वॉन्ट टू? आई वॉन्ट टू फील गुड अबाउट माई सेल्फ। मैंने अपने हस्बैंड और अपने बच्चों से ऑलरेडी कह दिया है, प्लीज़ यू हैव टू मेक समथिंग स्पेशल फॉर मी। हाँ जी, सो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट टू देम। हमें अपने दिमाग में जो इतनी सारी बातें चल रही हैं उनको आपस में समझना है। आज हम उसके बारे में आपसे बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी को तो बात करनी है ना। हम सब सोचते हैं कि हम आज ये करेंगे, हम आज वो करेंगे, पर बहुत बारी ऐसे होता है कि हम सिर्फ सोचते रह जाते। अपनी बारी सबसे लास्ट आती है। हम अपने आप को सबसे नीचे रखते हैं। बच्चे ऊपर, इन लॉज ऊपर, पढ़ाई ऊपर, काम ऊपर, पेरेंट्स ऊपर, इकोनॉमिक्स ऊपर, स्कूल की पढ़ाई और सारा काम ऊपर, सब कुछ ऊपर। माँ कहाँ है? सबसे नीचे। थोड़ी देर के लिए उसको खड़ा करके उसे भी पूछ ले, अपने माइंड को भी पूछ ले, और हमारे माइंड में ये थॉट्स आती क्यों हैं? और इतना कभी कभी तो ऐसे लगता है, जब मैं अपने माइंड को सोचती हूँ तो मुझे लगता है कभी कभी कि इतना कचरा भरा हुआ है, इतना कचरा भरा हुआ है कि मुझे लगता है एक वैक्यूम क्लीनर लेके मुझे अपना दिमाग साफ करना। क्यों? क्योंकि बहुत बारी दूसरों के बारे में नेगेटिव ख्याल आते हैं, चाहे वो मेरे बच्चे हों, चाहे वो मेरे हस्बैंड हो, इन लॉज हों, पेरेंट्स हों, कामकाजी लोग हों, मेरे आसपास के लोग हों, दोस्त हों, सहेलियाँ हों, कोई भी हो। क्यों? Every behavior has a positive intention behind it. Every behavior. When I say every behavior, it only means that that behavior is having a positive intention. जब कोई हमारी तरफ कोई भी व्यवहार करता है, उसके पीछे उनका अपना एक पॉजिटिव कारण होता है, चाहे वो आप हो, मैं हूँ या कोई भी हो। ये पॉजिटिव कारण कैसे समझ आएगा? अगर मैंने अपने बच्चे को टोका गलत काम करने में, मेरे हस्बैंड आए और उन्होंने भी आगे से उसको टोका और उसको बोला नहीं तुम करो, मुझे बुरा लग गया, तो मेरे साइकिल में क्या हुआ? ये साइकिल तब शुरू हुई जब मेरे मन में ये विचार आया कि ये मेरे ऊपर है और मैं इनके नीचे हूँ, मुझे इनकी बात सुननी पड़ेगी और मुझे चुप रहना है, ये जो बोल रहे हैं मुझे करना है। मैं ये नहीं कह रही कि आप लड़े, पर इसके साथ हमारे गलत विचारधारा भी शुरू हो जाती है। हो सकता है कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है उनकी सोच अलग हो, जिसकी वजह से उन्होंने बच्चे को परमिशन दी है, पर मैं उस टाइम पे ये नहीं सोचती, क्योंकि मैं अपनी अंदर की इनसिक्योरिटीज़, अपना कचरा रोज़ 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 यूज़ करती हूँ। एक ग्लास है, एक ग्लास दूध का है, आप रोज़ धो के उसमें दूध पीते हैं। आप एक बात बताएं, अगर एक दिन मेड ने उस ग्लास को अच्छे से साफ़ नहीं किया और उसी में दूध भर के और दे दिया, तो वो गंदगी तो फिर उसी में रहेगी ना। इसीलिए हमें अपने ग्लास को साफ़ करना है, आपको भी और मुझे भी। अपने माइंड में फ्रेशनेस रखनी है, अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है। सामने वाले की सोच कैसी भी हो, अगर मेरी सोच पॉजिटिव है, इफ़ आई एम पॉजिटिव, आई कैन वर्क टूवर्ड्स पीपल। आई डोंट नीड पीपल टू वर्क टूवर्ड्स मी, आई नीड मी टू वर्क टूवर्ड्स पीपल। अगर मैं हूँ तो सब है, मैं नहीं तो मुझे कोई नहीं दिखेगा। इसीलिए इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि अपना माइंड, अपना मन और अपने आप को हम साफ रखें और अपनी चेकिंग हम करते जाएं कि जो हमारे माइंड में इतना केओस है लोगों के प्रति, कभी कभी अपने बच्चों के प्रति, ये वाला तो बहुत शरारती है, ये वाला ठीक है, गलत। ये धाराएं जो हम अपने बच्चों को सुना देते हैं गलती से, ना बिना सोचे बिना समझे, ये धाराएं उनके मन के विचार बन जाते हैं अपने बारे में। आज मेरे अपने बारे में बहुत सारे विचार हैं जो शायद मेरे बचपन में मेरे पेरेंट्स की वजह से, पर हमें इन विचारों को रोकना है। वी हैव टू बी करेक्ट, वी हैव टू बी राइट व्हेन वी आर थिंकिंग एंड वी आर सेइंग समथिंग। क्योंकि एज अ मदर कोई माँ अपने बच्चे के लिए गलत तो सोचती ही नहीं है। सो वी हैव टू स्टॉप।
हम अपने बच्चों के लिए गलत नहीं सोच रहे। हो सकता है हमारा रास्ता लंबा हो, पर हमारी सोच लंबी नहीं है। हमारी सोच तो सारों की सेम ही है कि हम अपने बच्चों की भलाई चाहते हैं, हम अपने बच्चों की खुशहाली चाहते हैं, और हम अपने बच्चों के लिए हमेशा उन्हें खुश रखना चाहते हैं। हाय सुमति, सो यस, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़, आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर दोज, बट आई विल कंटिन्यू विद दिस सेशन बिकॉज आई हैव प्लान्ड सो मेनी थिंग्स फॉर ऑल ऑफ यू। जिस तरह मैंने आपको ग्लास का उदाहरण दिया, जहाँ एक ग्लास है बॉर्नवीटा का या कॉफ़ी का, हम बड़े तो कॉफ़ी पीते हैं दूध में या चाय में, और ये चाय का कप गंदा है, मेड ने गंदा छोड़ दिया, इसी में आपको अगले दिन फिर दूध या चाय मिले, आपको उसकी गंदगी दिख जाएगी, और उसी गंदगी को रोज़ अगर हम साफ़ नहीं करेंगे तो वो गंदगी वहाँ बैठ जाएगी। उसी तरह से हमें अपने माइंड को क्लीन रखना है, हमें अपने बारे में भी सोचना है। जैसे मैंने अभी थोड़ी समय पहले कहा था, मैं हूँ तो सब है, मैं नहीं तो कोई नहीं। इसीलिए लेट्स नॉट लेट द माइंड हैव केओस, लेट माइंड हैव थॉट्स। दिमाग में, मन में विचार हो, मन में सुनामी ना हो, क्योंकि सुनामी सिर्फ तबाही लाता है, बट विचार हमें उठाते हैं। इसीलिए थॉट्स, योर थॉट्स मैटर, not the chaos with it. The chaos is only going to downgrade you. It's only going to go downward. Let's lift ourselves. Let's lift each other. क्योंकि हम आपस में ही एक दूसरे को हिम्मत दे सकते हैं आगे बढ़ने की। ऐसी बहुत सारी माएँ हैं जो बहुत परेशान हैं क्योंकि बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे सुनना नहीं चाहते, और वो कहते हैं कि ये एक दिन का क्या मतलब है स्पेशल करने का। एक दिन कर लिया, पूरा साल मुझे गालियाँ दी, या पूरा साल मेरी बेइज्जती करी, या पूरा साल मेरी कोई बात नहीं सुनी। आई रिस्पेक्ट दैट, ये हमारे अंदर का गुस्सा है, बट 10 मिनट बाद हमें वही चीज़ अपने बच्चों की प्यारी लगेगी। तो एक बार सोचिए, अगर कल हमारे बच्चे हमारे लिए ज़रा सा स्पेशल कुछ करते हैं, वाई नॉट अप्रिशिएट देम। हम उस अच्छाई के पौधे पे पानी क्यों नहीं डालना चाहते? उस टाइम पे हम क्यों गंदगी करते हैं? क्यों हम बोलते हैं नहीं नहीं अब तुम आए हो, एक दिन तुम आते हो, पूरा दिन आई एम सिटिंग अलोन, यू डोंट केयर अबाउट मी, आज मदर्स डे है इसलिए तुम मेरे लिए स्पेशल कर रहे हो। दैट्स नॉट राइट। इफ़ माई चाइल्ड इज़ गिविंग मी अप्रिसिएशन टुडे, इज़ मेकिंग मी फील स्पेशल, is wanting to make his mother feel special. Hey Kajal, so I have to do something. I have to grow his positivity. मुझे उसी प्यार को रोज़ देखना है, तो मैं क्या करूँगी? मैं उस प्यार को और बढ़ने दूँगी, उस प्यार को बढ़ाना है। I have to make my child feel positive. मेरे पास 2 पौधे हैं, एक कैक्टस का और एक गुलाब का। चॉइस मेरी है, मैं किस पौधे में ज़्यादा पानी डालूँगी और ध्यान रखूँगी। धूप तो दोनों को मिल जाएगी बाहर वरांडे में, बट मैं पानी किस में डालूँगी, मेरा ध्यान किस पौधे पे होएगा। ये दोनों पौधे आपके बच्चे की हरकतें या बिहेवियर्स है। अगर कैक्टस जैसी हरकतें हैं, कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए उन पे आंखें मूंद लेंगे, और रोज़ वाली हरकतों पे अगर हम पानी डालेंगे तो वो रोज़ सिर्फ निखरेगा। वी हैव टू ग्रो आवर चिल्ड्रन पॉजिटिवली, एंड दैट इज़ द ओनली पॉसिबल व्हेन माई माइंड इज़ क्लियर ऑफ इट्स केओस, and my mind has positivity in it, my mind has love in it, and my mind has to respect the fact that I am able to deal with myself and the people around me, and this is only going to be possible when I will make an effort towards myself. जब मैं अपने आप को ही रिस्पेक्ट नहीं दूंगी, बहुत बार ऐसे होता है, मुझे आके पेरेंट्स कहते हैं कि मुझे ऐसे लगता है, मदर्स स्पेशली, कि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते क्योंकि शायद घर में कोई नहीं करता। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, क्या आप अपनी रिस्पेक्ट करते हो? डू यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ? आप, रिस्पेक्ट का मतलब लड़ाई नहीं है, रिस्पेक्ट का मतलब है अपने आप की आवाज़ सुननी। अगर मेरा मन अभी कह रहा है कि मैं थक गई हूँ, या मेरा मन कर रहा है मैं रोऊँ, क्या मैं अपनी बात सुन पा रही हूँ? या मैं इतनी बिजी हूँ सबके लिए सब कुछ करने के लिए कि मेरे पास अपनी आवाज़ सुनने का समय ही नहीं है। फिर जब दूसरे मेरी वैल्यू नहीं करते तो मुझे बुरा लगता है। येस, आई डू फील बैड जब दूसरे मेरी बात नहीं सुनते। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मुझे अपनी रिस्पेक्ट खुद करनी है। I have to respect myself. I have to make sure that I am a good human being and I am able to listen to what my needs are. हम अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो लोग, बच्चे, इन-लॉज, स्पाउस, कोई नहीं करेगा।
रिस्पेक्ट का मतलब लड़ाई नहीं है। रिस्पेक्ट का मतलब है अपने आप की आवाज़ सुननी। बहुत बारी ऐसे होता है कि हम जब क्वेश्चंस पूछते हैं या अपने बच्चों से बात करते हैं, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी, क्या आप अपने बच्चों की बात सुनने के लिए सुनते हैं या उनको जवाब देने के लिए सुनते हैं? आई रियली वॉन्ट टू नो दिस, बिकॉज हम अपने बच्चों की बात सुनने के लिए नहीं सुनते, उन्हें जवाब देने के लिए सुनते हैं। अगर मेरे बच्चे ने मुझे अभी PS4 की बात करी, प्ले स्टेशन की बात करे, मेरे दिमाग में ऑलरेडी एक धारणा है, अभी ये मुझसे गेम मांगेगा और मुझे इसको देनी नहीं है, बहुत टीवी टाइम हो गया, बहुत गैजेट टाइम हो गया, तो मैं तो नहीं दे रही हूँ। उसकी बात तो मैंने सुनी ही नहीं ना। वाई एम आई नॉट लिसनिंग? आई डोंट लिसन टू लिसन, आई लिसन टू रिप्लाई बैक, एंड दैट इज़ वेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट आवरसेल्व्स। हम मदर्स को ये चीज़ अपने आप में समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वी आर द फाउंडेशन लेयर्स। हम नींव डालते हैं अपने बच्चों के आगे फ्यूचर की, चाहे कोई इसका क्रेडिट आपको दे या ना दे। मैं अपने ऊपर पूरा क्रेडिट लूँगी एज अ मदर कि मैं अपने बच्चों की शिक्षा, बड़ा होना, उनके फ्यूचर की सारी जिम्मेदारी हम पर है जब तक ये हमारे पास हैं। और क्यों ना लूँ? जिम्मेदारी का मतलब कंट्रोल नहीं है। जिम्मेदारी डज नॉट मीन कंट्रोल। जिम्मेदारी मीन्स आई एम जस्ट रिस्पॉन्सिबल. I am respecting these boundaries that I have. I am respecting the fact that they are my children and they will only ask me what they want to ask. So I will respect that about them and I will answer them about that. But बहुत बार ऐसे होता है कि हम सुनते नहीं हैं। हमें सुनना है। हमें कितना बुरा लगता है जब हम कुछ बात किसी अपने से कर रहे हैं और हमारी बात काट दी जाती है। बहुत गुस्सा चढ़ता है। मेरा तो मन अंदर से खौलता है कि मेरी बात नहीं सुनी। बट इट्स ओके। अगर मैं भी यही चीज़ करूँगी सबके साथ, तो मेरे और उनमें अंतर क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मुझे अपने बारे में ये याद है कि मेरे बच्चे मुझे देख रहे हैं, मेरे बच्चे मुझे अपना उदाहरण ले रहे हैं। डोंट वरी कि मैं और मेरे हस्बैंड कैसे हैं, हमारा रिलेशनशिप कैसा है, हमारे बीच इतनी आर्ग्यूमेंट्स हो गई, हमारे बच्चे देख रहे हैं तो हमारे बच्चों की अपब्रिंगिंग बुरी है। आई एम सॉरी, कोई माँ बाप अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग बुरे नहीं कर रहे। कोई भी, कोई कहीं भी रह रहा हो, उनकी अपब्रिंगिंग बुरी नहीं है। अपब्रिंगिंग बुरी कभी भी नहीं होती, हमारी सोच बुरी है। अगर कोई और अपनी पेरेंटिंग, अपनी परवरिश में वो चूक रहे हैं, वो उनका डिपार्टमेंट है, वो मेरा नहीं है। एक बात आप याद रखें, पेरेंटिंग अपनी अपनी जर्नी है। इट्स माई ओन जर्नी। मैं अपने बच्चे के साथ कैसी हूँ, मैं उसके साथ बात कैसे करती हूँ, मैं उसे क्या अपने बारे में दिखा रही हूँ, वो मेरे बारे में क्या देख रहा है, समझ रहा है, ये मेरा रिलेशनशिप है। वो हमारे बारे में क्या देख रहा है, वो उसका रिलेशनशिप नहीं है। उससे उसका कोई लेना देना नहीं। मेरे हस्बैंड उससे बात करे ना करे, वो उनका डिपार्टमेंट है। परवरिश हर पेरेंट की इंडिविजुअल होती है और इस इंडिविजुअल पेरेंटिंग में हमें ये समझना है कि मेरी पेरेंटिंग, मेरी परवरिश एज अ मदर इज़ फाउंडेशन। वो नींव है, उसके ऊपर कोई नहीं है। उस नींव के आगे ही सब कुछ बढ़ेगा, उससे पहले यहाँ कुछ नहीं आ सकता। और जब मेरी नींव सही है, जब मैं सही चल पा रही हूँ अपने बच्चे के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ, मैं खुश हूँ, तो मेरा बच्चा भी खुशी ढूंढेगा। मैं उदास हूँ और अपने बच्चे को पूछूंगी। मेरे को बहुत बार ऐसे पेरेंट्स कहते हैं, मेरा बच्चा ना पढ़ता नहीं है, हंसता नहीं है, सारा दिन गुस्से में रहता है। हो सकता है उसे अपना एनवायरनमेंट हैप्पी नहीं लग रहा हो सकता है उस पर ये प्रेशर हो कि सारा टाइम सब लोग कुछ कुछ बोल रहे हैं, सब कोई ओपिनियंस झाड़ रहे हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वो अपने दोस्तों के साथ तो उदास नहीं है। बहुत कारण हो सकते हैं किसी की चुप रहने के या किसी के उदास रहने के। पहले अपने आप से चेक करो, आप खुश हो, आप अपने आप के साथ ठीक हो? आर यू एबल टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर हैप्पीनेस? वी रन अ सेंटर कॉल हैप्पीनेस क्वेश्चन। जब मैंने इसे शुरू किया था तो मेरी सिर्फ एक थॉट थी, एक विचार, और वो एक विचार था, लोग आके पूछते हैं मेरा बच्चा इंटेलिजेंट है, मेरा बच्चा ठीक तो है ना, पढ़ तो जाएगा ना, कुछ कर जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मैडम? हॉस्पिटल में तो बहुत बार ऐसी चीज़ें होती थी। स्टॉप, ये चेक करो मेरा बच्चा खुश है? इज़ माई चाइल्ड हैप्पी? बिकॉज आई डोंट नो इफ़ माई चाइल्ड इज़ हैप्पी और नॉट।
हैप्पीनेस क्वोशेंट इज ऑल अबाउट हाउ हैप्पी एम आई। एक स्केल पे चेक करो आप आज कितने खुश हो। मैं अपने बच्चों को अगर मूड ट्रैकिंग सिखाती हूँ तो मैं उस पर खुद भी कोशिश करती हूँ। आज मेरा मन उदास है, खुश हूँ या ठीक हूँ। दिन में 3 बार अपने आप की चेकिंग करती हूँ, क्योंकि मुझे खुश रहना है, क्योंकि मेरे बच्चे मुझे देख रहे हैं, बिकॉज आई एम अ मॉम। और मेरे मन में हलचल ना हो, मेरे मन में कोई सुनामी ना आए, मेरा मन सोच सही सके। ये नहीं है कि मैं 24 घंटे सही सोचती हूँ। अगर आप मुझसे सच पूछेंगे तो मेरी भी गाड़ी उल्टी ही चलती है आधा टाइम, बट इट्स ओके। इतना कॉन्फिडेंस अपने पे एज अ मदर है कि कोई बात नहीं, जो हैं जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती, क्योंकि हम ठीक चल रहे हैं। हमारे पेरेंट्स ने हमें ठीक ठाक ही बड़ा किया है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी परवरिश हमें मिली है। उसी तरह से हमें अपने आप पर भी यही कॉन्फिडेंस रखना है कि हम भी अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देंगे, हमारे बच्चे भी अच्छे ही निकलेंगे, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो स्टॉप थिंकिंग दैट माई चाइल्ड हैज़ अ प्रॉब्लम। The next thing I wanted to talk about was connection versus correction. It was a part of the flyer also. Connection versus correction. जब हम अपने बच्चों से बात करते हैं, बहुत बारी हमारा मन सिर्फ एक चीज़ होता है, वो पता है क्या है? इनको किसी तरह से सही किया जाए, इनको बताया जाए कि करना क्या है। आई एम सॉरी, आपको अपने बच्चे का करेक्शन नहीं करना है। हम उनसे बात ही सिर्फ इसलिए करते हैं कि हम उनको टोक के सही कर सकें। ठीक है, अंदर की सोच क्या है? व्हाट इज़ द इंटेंशन बिहाइंड दिस? द इंटेंशन इज़ कि मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना आए, मेरे बच्चे में कोई मुश्किल ना हो। अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि जो प्रॉब्लम्स मुझे आई वो मेरे बच्चा ना फेस करे, वो भी समझ आता है। बट आप मुझे एक और चीज़ बताएं, ज़रूरी है क्या हर बारी अपने बच्चों को टोक टोक के करेक्ट करना है? क्या बात करके इतना कॉन्फिडेंस नहीं हम डाल सकते कि हमारे बच्चे अपने आप को करेक्ट कर ले? मुझे ऐसे लगता है, ये मेरी सोच है कि मुझे अपने बच्चे से कम्युनिकेट करना है, करेक्शन नहीं करना। मुझे उसके साथ कनेक्ट करना है, मुझे जुड़ना है अपने बच्चों से। आज अगर हम अपने बच्चों से जुड़ कर रहें, कोई बॉयज़ लॉकर रूम, गर्ल्स लॉकर रूम कुछ नहीं होगा। एंड आई प्रॉमिस यू दैट। ये प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में है, हम मदर्स में हैं। हमें इतनी इनसिक्योरिटी लगती है, कभी कभी हमें लगता है कहीं हम रह गए, हमारा बच्चा ना रह जाए। हम इतनी आगे हैं तो हमारे बच्चे को भी आगे आना। हम अपने बच्चों पर रोज़ प्रेशर डाल रहे हैं, रोज़ उसे दबा रहे हैं। हमें इस चीज़ को रोकना है। हमें अपने बच्चों पर प्रेशर नहीं डालना, उनके साथ जुड़ना है। अगर हम उनसे जुड़ते हैं तो उनमें सही और गलत दोनों की पहचान कितनी अच्छे से हो सकती है, ये आप खुद ही आजमा लीजिएगा। बिकॉज इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू कनेक्ट विथ योर चाइल्ड। करेक्शन जो हम करते हैं वो तो हर इंसान कर सकता है। टीचर भी कर लेती है, फादर भी कर लेता है, ट्यूशन टीचर भी कर देती है, भैया और दीदी भी कर देंगे। माँ कैसे डिफरेंट है? क्योंकि माँ पहले जुड़ती है, पहले समझती है। क्यों मेरे बच्चे को ये समझाना पड़ा, क्या हुआ, उसके मन में क्या चला। बहुत बारी अगर बच्चे गलती भी करते हैं तो पेरेंट्स खुद ही उसका आंसर सोच लेते हैं। क्यों? क्योंकि एज पेरेंट्स, एज मदर्स, हमारे में ये शक्ति है कि हम अपने बच्चों को ये समझा सकें, हम अपने बच्चों की ये बात पकड़ सकें, हम अपने बच्चों की ये गलतियाँ समझ सकें कि ये गलती वो क्यों कर रहे हैं। आज अगर हम गर्ल्स लॉकर रूम, बॉयज़ लॉकर रूम की बात करें, इमीडिएट क्वेश्चन है, आप जानते हैं उनको कौन से स्कूल के हैं? क्यों? आपका बच्चा हो सकता है, मेरा हो सकता है। आप माँ हैं, मैं माँ हूँ। आपने भी मोबाइल दिया होगा अपने बच्चों को, दोगे आगे फ्यूचर में, मैं भी दे रही हूँ। फ़र्क क्या है हमारे में? कोई फ़र्क नहीं है। वो पेरेंट्स कितने मुश्किल में हैं इस टाइम पे, हमें आइडिया भी नहीं है। गलती ना उनकी है ना बच्चों की है। हम अपने बच्चों का जूम का होमवर्क का ध्यान नहीं रख पा रहे। आप कहते हैं अपने बच्चों का ऑनलाइन ध्यान रखें। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट दिस। वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट कि जुड़ना कितना ज़रूरी है। आज मैं अपने बच्चे से जुड़ूंगी, कल को उसको मुश्किल आएगी तो वो मेरे पास आएगी। मैं एक बार एक पेरेंट से पूछा, आपने अपने बच्चे को लास्ट अप्रिशिएट कब किया? उनका आंसर मुझे आज तक नहीं भूलता। मेरे बच्चे में तो कोई अप्रिसिएशन लाइक कोई चीज़ ही नहीं है, कुछ करती ही नहीं है वो, या कुछ करता ही नहीं है, तो क्या अप्रिशिएट करूँ? कुछ होगा तो अप्रिशिएट करूँ ना।
मार्क्स भी अच्छे नहीं आते, सारा दिन फ़ोन पे लगी रहती है, बात सुनना नहीं चाहती, कमरे से निकलना नहीं चाहती. Isn't that what we all say? But appreciation is not an accolade. It is not a praise. मैं आपको अपने बच्चे की बढ़ाई करने के लिए नहीं बोल रही. अपने बच्चों को छोटी छोटी हरकतों पे अप्रिशिएट कीजिए, उन्हें मुबारक दीजिए, उन्हें खुश करिए, उन्हें दिखाइए कि हमने नज़र में लेके आए. आई अंडरस्टूड एंड आई नोटिस्ड कि आपने ये मेरे लिए किया, आपने मेरा पानी का ग्लास लाकर मुझे दिया. आप मानेंगे, आज अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पे आपसे बात कर रही हूँ, ये मेरी 6 साल की बच्ची आईपैड को लगा के पूरा सेट करके, मम्मा यू आर रेडी टू गो फॉर योर क्लास. डू आई अप्रिशिएट दैट अबाउट हर? येस. इज माई चाइल्ड हेल्पफुल? येस. दीज आर थिंग्स दैट वी नीड टू अप्रिशिएट. दीज आर थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड रिलेट विथ आवर चिल्ड्रन. हमें अपने बच्चों की इन छोटी छोटी बातों को सहलाने की ज़रूरत है, ना कि ये बोलने की ज़रूरत कुछ बड़ा करेंगे तो हम खुश होएंगे. सॉरी, ये साउंड तो फादर्स जनरली करते हैं, मदर्स नहीं. जब कुछ अच्छा हो तो सब बोलते हैं मेरा बच्चा. आज क्या कह रहे हैं सब फादर्स? बहुत फादर्स हैं ऐसे. आई एम सॉरी, दिस इज़ अ वुमेन्स फोरम एंड आई एम ट्राइंग टू टेल यू समथिंग वेरी ऑनेस्टली कि बहुत बार ऐसे होता है, तुमने बिगाड़ा है. आज लॉकडाउन में खाना एक साथ खाते हैं, बच्चे की कोई हरकतें आ रही हैं, नज़रअंदाज हो जाती थी पहले, अब आ रही हैं नोटिस में. माँ तुमने बिगाड़ा है इसको. क्यों? वाई ब्लेम? वाई? अगेन आई से, वी आर नॉट हियर टू करेक्ट, वी आर हियर टू कनेक्ट. मेरे बच्चे से मुझे जुड़ने की ज़रूरत है. अगर आज मैं अपने बच्चे से जुड़ती हूँ तो कोई उस जोड़ को नहीं तोड़ सकते, आप उस बॉन्ड को नहीं तोड़ सकते. इस मदर्स डे मेक इट स्पेशल, मेक इट काउंट टू योर सेल्फ कि मेरे बच्चों ने मेरे लिए ये किया था और आगे से मैंने उनके लिए ये किया था. दैट इज़ स्पेशल. दैट इज़ व्हेन आई से दैट यू आर डूइंग द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड एज अ मदर. हम अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं, इसे महंगी क्लासों में डालना चाहते हैं, हर कोई ऑनलाइन कोर्स कराना चाहते हैं. हम अपने बच्चों के साथ जुड़ेंगे कब? हमारे बच्चों को गैजेट्स की ज़रूरत नहीं है, हमारे बच्चों को लोगों की ज़रूरत नहीं है, उन्हें आपका और मेरा साथ चाहिए. एज अ मदर जुड़ें, अपने बच्चे से जुड़ें, बिकॉज कनेक्शन इज़ बिगर देन एनी करेक्शन इन द वर्ल्ड. व्हेन आई कनेक्ट विथ my child does not need to be corrected, he auto corrects. But if I want to put my child into the autocorrect mode, I have to first communicate and connect. He will go into the autocorrect mode. I have faith in my upbringing. मुझे अपनी परवरिश पे गर्व है, मुझे भरोसा है अपने आप पर कि एज अ मदर मैं ये कर सकती हूँ. इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने बच्चे से जुड़ कर रहें. And the last thing before I wind this up, the love of me. अपने लिए प्यार. अपने लिए आप क्या करते हैं? हम अपने लिए करते क्या? हम अपने लिए कुछ नहीं करते. बहुत लोग हैं जो करते हैं, ठीक है, मानती हूँ, बट बहुत ऐसे लोग हैं जो सिर्फ समय ढूंढते रह जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं खुद कभी कभी अपनी माँ से बात करने के लिए 2 या 4 दिन लग जाते हैं ढूंढते हुए समय कि शांति से बात करूँ. So where is the time? I have to create time. I have to make time. If I want my children to be disciplined, I have to be disciplined. And these things I can learn from anybody. For example, मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड बहुत डिसिप्लिन्ड है, उनसे लेना. सीख हमें कोई भी दे सकता है, सर्वेंट भी दे सकता है, मेड भी दे सकती है, इन-लॉज भी दे सकते हैं, बच्चे भी दे सकते हैं, स्पाउस भी दे सकता है, कोई भी दे सकता है. पर अपने लिए प्यार करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप से प्यार करना बहुत ज़रूरी है. जब मैं छोटी थी, सो वन स्टेटमेंट दैट माई मदर ऑलवेज टोल्ड मी एंड आई ऑलवेज स्टैंड फॉर दैट. आई एम हु आई एम एंड आई लव बीइंग हु आई एम एंड आई विल नॉट चेंज इट फॉर एनीवन इन द वर्ल्ड. आई गिव दैट स्टेटमेंट टू माई मदर बैक. आई एम बिकॉज शी वॉज. वो थी तो आज हम हैं, वो खड़ी थी तो आज हम खड़े. उसी तरह से आज अपने लिए खड़े होगे, अपने आप को खड़ा रखोगे, तो कल आपके बच्चे भी आपको देख के खड़े होंगे. अगर और कुछ नहीं, आप अपने बच्चे की सबसे बड़ी मोटिवेशन है और सबसे बड़े क्या बोलते हैं, मेंटोर हैं, कोच हैं और एग्जाम्पल हैं.
वो आपको ही देख रहे हैं। मेरा बच्चा सिर्फ मुझे देख रहा है। बहुत बार हमारे बच्चे एक परछाई की तरह हमें हमारे नेगेटिव्स भी दिखा जाते हैं। मैं अपने बच्चे को अगर बोलूँगी आप चिल्ला क्यों रहे हो, यू नो व्हाट शी सेज, क्योंकि आप चिल्ला रहे थे। इज दैट राइट और नॉट? सो द लव ऑफ मी, आई हैव टू लव माई सेल्फ। अगर मैं अपने आप के लिए दिन में केवल 30 मिनट 30 मिनट्स अगर मैं अपने लिए 30 मिनट निकाल सकूं दिन में, तो मैं अपने बच्चों के साथ क्या, मैं सबके साथ जुड़कर रह सकती हूँ एज अ कम्युनिटी। क्योंकि 30 मिनट्स मिनिमम, अगर उससे ज़्यादा समय आप दे सकते हैं तो वेरी गुड, बट 30 मिनट्स आई हैव टू इंडल्ज इन माई सेल्फ। हो सकता है नेल पॉलिश लगाना, हो सकता है फेस मास्क लगा के लेटे रहना, हो सकता है नहाना, हो सकता है सोना, हो सकता है फ़ोन पे बातें करना, कुछ भी हो सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि मैं अपने आप के लिए समय निकालूं, क्योंकि समय निकालना बहुत ज़रूरी है। और अगर आज आपने समय नहीं निकाला तो आप कभी नहीं निकाल पाओगे। टुमारो इज़ मदर्स डे। आई रिपीट, दिन में अपने लिए केवल 30 मिनट निकालिए और सबको कहिए ये 30 मिनट थोड़ी देर में अपना काम कर लूँ। मुझे ड्राइंग नहीं आती, पर मैं अपने लिए डूडलिंग ज़रूर करती हूँ। मैंने सीखा भी और मैंने कोशिश भी करी, और मैं अपने मन के लिए, अपने आप को सहलाने के लिए ज़रूर करती हूँ। मुझे किताबें पढ़ना बहुत शौक़ है। मुझे थोड़ी थोड़ी देर में टीवी देखना या गाने सुनना बड़ा अच्छा लगता है। आई हैव टू मेक टाइम फॉर माई सेल्फ, बिकॉज नोबडी एल्स विल कम एंड से ओके करिश्मा व्हाई डोंट यू मेक टाइम। नो, कोई नहीं मेरे लिए समय निकालेगा। मुझे अपने लिए समय खुद ढूंढना है, अपने आप को प्यार करने के, अपने आप को शाबाशी देने के लिए, दैट आई एम डूइंग अ गुड जॉब, आई एम गुड, आई कैन हैंडल माई सेल्फ। एंड दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं मॉम हूँ, मैं हिल नहीं सकती यहाँ से, क्योंकि मेरे बच्चे मेरे पे निर्भर। अपने बच्चों के आगे नहीं चलना, अपने बच्चों के साथ या उनके पीछे चलना है, ताकि अगर वो गिरे तो हम उन्हें पकड़ सकें। आज समय उनके आगे चलने का बिल्कुल नहीं है। आप आगे चलोगे वो आपको ही धक्का मार देंगे। बी द पावर मॉम, बी द सुपर मॉम, वॉक बिहाइंड देम, हैव फेथ इन योर चाइल्ड, हैव फेथ इन योर अपब्रिंगिंग, बिकॉज यू हैव बीन ब्रॉट अप सो वेल, योर चिल्ड्रन विल बी ब्रॉट अप द बेस्ट वे, and you have not gone wrong with your upbringing. So stop going on the guilt trips that you go for. हम बहुत बार गिल्ट पेरेंटिंग में चले जाते हैं, पर मैं तो बहुत काम कर रही हूँ तो मेरे बच्चे तो बिल्कुल इग्नोर हो रहे हैं। सॉरी, आपके बच्चे आपके साथ 24 आवर्स नहीं रहना चाहते। हमें अपने बच्चे को सिर्फ 10 से 20 मिनट अगर दिन में 1-on-1 दे दिया, इट्स ओके। आज अगर हम अपने बच्चे को दिखा रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, हमारा बच्चा ये नहीं देख रहा कि हम उनको समय नहीं दे रहे। हमारा बच्चा ये देख रहा है कि वो अपने लिए भी समय निकालती है, तो मैं भी अपने लिए समय निकालूं। जब हम बड़े हो जाएं तो हमारे पास भी कुछ करने को हो। मुझे नहीं निर्भर रहना अपने बच्चों पे। मैं मॉम हूँ, बट मैं डिपेंडेंट मॉम नहीं बनना चाहती, बिकॉज आई वॉन्ट टू टीच देम टू बी इंडिपेंडेंट। फॉर दैट आई हैव टू बी इंडिपेंडेंट। अगर मुझे लगे कि कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे अपने बच्चों से बात करनी चाहिए। बहुत बार ऐसे होता है, मैं अपनी एनर्जी ख़त्म हो जाने पर अपने बच्चों के पास जाती हूँ एंड आई टेल देम कि आई एम फीलिंग सो सैड, आई वॉन्ट टू क्राई। इमीडिएटली मेरे बच्चे मुझे हक करते हैं। वो मेरी एनर्जी है, वो मेरी पावर है, और मेरे बच्चों की एनर्जी मैं यूज़ नहीं कर रही। जब मैं उनसे ये एनर्जी लेती हूँ तो उनकी एनर्जी बढ़ जाती है डबल, क्योंकि उन्हें ये एहसास होता है कि हमारी माँ हम पर निर्भर है। माई मदर इज़ डिपेंडेंट ऑन मी। They feel good. They are multiplying their energy into many folds. So don't worry about what your child thinks. Worry about how can I connect. वो बात नहीं करेंगे। मेरा बच्चा मुझसे बात नहीं करेगा। मुझे अपने बच्चे से बात शुरू करनी है। हर रोज़ 20 दिन अपने बच्चे से बात शुरू करो। On the eve of Mother's Day, I repeat to each one of you one thing: take out 30 minutes for yourself. Make sure that you spend 15 to 20 minutes with your child in isolation, talking about the things you want to talk about. अगर आपको डर है ना उनके लिए कोई भी चीज़ों का, आप उनसे बात करो। बच्चे, मुझे ये डर लग रहा है, आई होप सब ठीक है। आप पढ़ लोगे ना, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। When I do positive talking for 15-20 minutes, मेरा बच्चा मुझसे वहीं जुड़ गया और वो वहीं रुक जाएगा। मुझे अगर अपनी एनर्जी ख़त्म होती दिखती है
तो ज़रूरी है मैं बाहर से अपनी एनर्जी भरूँ वापस, और उसके लिए नेचुरली हमारे बच्चों से बेटर कोई एनर्जी रिजर्वॉयर नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर हमें आसपास केओस दिख रहा है, हमारे मन में बहुत हलचल है, देयर आर लॉट ऑफ सुनामी ऑफ थॉट्स इन माई माइंड, स्टॉप, अपने आप को रेस्ट दो, अपने केओस को रोको, अपने आप को कुछ पॉजिटिव चीज़ में जोड़ो, किसी से बात करो। आई एम ऑलवेज अवेलेबल एज अ काउंसलर इफ़ यू एवर नीड हेल्प। लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपने आप पे भरोसा, और अपनी मॉम को याद कर, आई एम हु आई एम एंड आई लव बीइंग हु आई एम। आई विल नॉट चेंज इट फॉर एनीवन इन द वर्ल्ड। एंड टू माई मॉम आई से, यू वर सो आई एम, शी वॉज सो आई एम। वो खड़ी थी तो आज मैं खड़ी हूँ, और आज मैं खड़ी हूँ तो कल मेरे बच्चे भी खड़े रहेंगे। With this, I'd like to end this Mother's Day special. I really hope you have gained something out of this. Thank you very, very much for watching me so patiently, and I'm very, very grateful to each one of you. Thank you, Tanushree, yet again for Winnings 3 as a platform, and I'm extremely grateful to each one of you for watching. If you have any questions or comments, please feel free to write on this post. I shall revert back ASAP. Happy Mother's Day tomorrow, and remember, pat your back because you are a super mom. Bye-bye.